السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم آئی آر کے بارے میں کچھ لیکچرز ہم نے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں۔ آج ہم اس کا تیسرا لیکچر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے ڈیفینیشن دیکھی، اسکوپ دیکھا آئی آر کا، ایوولوشن آف آئی آر ایز اے ڈسپلن دیکھی۔ اس کے بعد ہم نے فیکٹرز دیکھے جو کہ آئی آر کو ڈٹرمن کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے نیشن اسٹیٹ سسٹم دیکھا، اس کی ایوولوشن دیکھی، اس کے ایشوز دیکھے جو اس کو چیلنجز ہیں۔ آج ہم جو دیکھیں گے وہ ایوولوشن آف انٹرنیشنل سوسائٹی۔ سب سے پہلے اگر میں ڈیفائن کروں ایوولوشن کیا ہوتی ہے، ایوولوشن مطلب کہ ایک جو ارتقا، کسی چیز کا ارتقا مطلب کہ کوئی چیز کہاں سے بنی اور پھر کہاں سے کہاں تک وہ پہنچ گئی۔ اسی طرح اگر فار ایگزامپل ہم انسان کی ارتقا کو دیکھیں تو جس طرح آپ ایک انسان کس طرح بنتا ہے، پہلے وہ ماں کے پیٹ میں ایک مطلب کہ ایک جو لوتھڑے کی طرح وہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد ود دا پیسج آف ٹائم ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیاں بن کے وہ پراپر ایک باڈی کی شیپ میں آتا ہے، اینڈ دین وہ ایک انسانی روح، انسانی جسم کے فارم میں وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نا ایک ایک ہر چیز کی نا ایک ارتقا ہوتی ہے، سٹارٹ ہوتا ہے کسی چیز کا۔ اسی طرح جو انٹرنیشنل سوسائٹی ہے، جو آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جو آج کا جو سسٹم ہے، اس کو کہتے ہیں گلوبل کیپٹلسٹ سسٹم یا لبرل ماڈل۔ جو کہ یہ سسٹم ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سٹارٹنگ سے یہی تھا۔ اس نے بہت سے دکھ سہے ہیں، اس نے بھی بہت سے ایسے مسائل دیکھے ہیں جس کے بعد یہ ود دا پیسج آف ٹائم ایوالو ہونا سٹارٹ ہوا، اور ایوالو ہوتا 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 آج جس کنڈیشن میں ہے یہ یہاں پر ہے۔ تو یہ جو ایک انٹرنیشنل سوسائٹی ہے، اس کو اگر ہم بریک کریں، ایوولوشن آف انٹرنیشنل سوسائٹی، تو انٹرنیشنل تو آپ کو پتہ ہے مطلب کہ نیشنز کا آپس کے اندر جو ایک آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک برج کہہ لیں، آپ ان کا ایک اٹھ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ایک سمپل سوسائٹی ہوتی ہے وہ تو ایک ہماری ایک نیشنل سوسائٹی ہے، ایک ہمارا فار ایگزامپل ہم کسی ایک ایریا میں رہتے ہیں تو وہ ایک معاشرہ ترتیب پاتا ہے، مطلب کہ ایک معاشرہ بن جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اوور آل انٹرنیشنلی دیکھیں، اوور آل اگر ہم گلوبل چیزوں کو دیکھیں، تو وہ جو کمیونٹی آف نیشنز ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل سوسائٹی۔ اب وہ جو آج کا انٹرنیشنل سوسائٹی ہے، اس کی ایوولوشن کیسے ہوئی، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی آج بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ نیچر آف ایوولوشن، یہ کس طرح کی ایوولوشن مطلب کہ ہوئی کس طرح، اگر آپ دیکھیں تو اس کو نا چار بیسز پہ میں نے ڈیوائڈ کیا ہے۔ یہ میں نے نہیں کیا، اوورال تھنکرز نے جو کیا ہے ان کے مطابق اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کہا جی کہ نو ادر لیگل سسٹم، لیگیلٹی طور پر مطلب کہ قانون کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں اوورال انٹرنیشنل سسٹم کو، تو نو ادر لیگل سسٹم ایکسیپٹڈ ورلڈ وائڈ آن اونلی انگلش سروائیوڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ۔ کیسے جی؟ اب اگر فار ایگزامپل ہم ایگزامپل دیتے ہیں، پرشین جو رومن تھے وہ آئے، پرشین آئے وہ آئے، اس کے علاوہ مسلمس آئے، انہوں نے اپنا شریعہ لا دیا، لیکن وہ نا اوورال ورلڈ وائڈ کہیں پر بھی نہ چلا، بیکاز آف سم سارٹ آف ان کی اتنی زیادہ سپریڈنس نہ ہوئی۔ اگر ہم اس انگلش کو صرف اسلام کے ساتھ لنک کریں اور اس کے ساتھ کمپیریزن کریں، تو آپ دیکھیں اسلام جو تھا وہ بیسیکلی عرب ورلڈ میں تھا، اور سب کانٹیننٹ میں، اور کچھ پارٹ آف افریقہ میں تھا۔ اوورال دنیا کے اندر یہ نہیں تھا۔ لیکن اگر آپ فار ایگزامپل اس ٹائم انگلش کو دیکھیں، یہ جو انٹرنیشنل لا ہے اس کو دیکھیں، تو اوورال 193 نیشنز یو این کا ممبر ہیں، اور وہ اس جو لیگل سسٹم ہے اس کو فالو کر رہی ہیں۔ سملرلی اگر ہم تھیولوجیکل دیکھیں، مطلب کہ جو ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یا ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، کیتھولکس آئے، زائنسٹ تھے، اسلامسٹ تھے، ایرانین ریولوشن آیا، عرب نیشنلزم تھی، کنفیوشیس جو کہ چائنیز تھے، کوئی بھی سسٹم اس طرح کا نہیں تھا جو کہ اوورال دنیا کے اوپر پریویل کیا جس نے۔ لیکن سیکولر سسٹم جو تھا وہ پریویل کیا، کیسے؟ اس ٹائم موسٹلی جو دنیا کے اندر اگر جو نیشنز ہیں نا، ان کے اندر اگر آپ ویسٹرن کا صرف دیکھیں اپارٹ فرام اسلامک، اور بہت سے ایسے اسلامک کنٹریز بھی ہیں جنہوں نے سیکولر اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ ون آف دا میجر مینیفیسٹیشن آف اسلامک کنٹری ہو ہیز ڈکلیئرڈ اٹ سیلف سیکولر اسٹیٹ از ٹرکی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو جو سیکولر سسٹم تھا وہ پریویل کیا، مطلب کہ وہ اوورال جو تھا دنیا کے اوپر ایکسیپٹ کیا گیا، مطلب کہ باقی یہ سارے جو سسٹمز تھے یہ چلے صحیح، لیکن جو جس نے ایک پریڈومیننس اپنی جو ایکوائر کی، جس نے ایک پریڈومیننٹ پوزیشن حاصل کی، وہ تھا سیکولر سسٹم۔
नेक्स्ट अगर देखें तो फिलोसफिकल एवोल्यूशन को देखें तो इस्लाम आया, इस्लाम ने अपनी थ्योरी पेश की, कम्युनिज्म, नाजीज़म, इनको ना हम ये जो थ्योरीज हैं हम इंशाल्लाह ताला हम इनको फर्दर पढ़ेंगे। मार्क्सिज्म थी, फाशिज्म थी, रोमन, फ्रेंच, ये सारे आए और सारे अपने साथ कोई ना कोई एक फिलॉसफी लेके आए। जिस तरह इस्लाम आया था तो उसने अपने जो जिस तरह लॉ ऑफ वार्स सॉरी लॉज ऑफ वार थे, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट था, इस तरह की जितनी भी फिलोसफीज थी वो इस्लाम लेके आया। इसी तरह क्रिश्चियनिटी की अलग थी, कम्युनिज्म का कुछ अलग था, मार्क्स की थ्योरी ऑफ स्ट्रगल थी, नाजीज़म का जर्मन अपर रेस थी, फाशिज्म वो भी मतलब कि इसी तरह का एंटी कम्युनिस्ट एंटी कैपिटलिज्म था। मतलब ये सारी थ्योरीज जो थी ना वो आई, लेकिन वो कोई भी इस तरह प्रिवेल ना कर सकी जिस तरह कैपिटलिज्म ने प्रिवेल किया। कैपिटलिज्म क्या है? ये एक सरमाया कराना निज़ाम जो इस टाइम दुनिया के ऊपर चल रहा है ओवरऑल द मतलब कि 193 नेशंस जो हैं इस टाइम ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट फ्रॉम सम नेशंस जिनमें चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है और कुछ और नेशंस हैं जो कि इसको प्रॉपरली नहीं मानती, मानती टू सम एक्सटेंट, वो इसका पार्ट हैं, लेकिन वो इसको थोड़ा सा एक चेंज करके एक मॉडिफाइड फॉर्म में अपना जो सोशलिस्ट कैपिटलिज्म का जो कंसेप्ट है वो उसको फॉलो करते हैं, लेकिन ओवरऑल दुनिया के ऊपर जो सरवाइव किया वो कैपिटलिज्म था। नेक्स्ट अगर देखें तो हिस्ट्रिकल एवोल्यूशन की वो बात करते हैं जी, स्टोन एज से स्पार्टा, रोमन्स, मुस्लिम, स्पेनिश, फ्रेंच, सोवियत, कोई भी इनमें से वर्ल्ड वाइड इस तरह नहीं प्रिवेल कर सका जिस तरह इंग्लिश अब कर रहे हैं। ये जब इंग्लिश की बात आ रही है तो वेस्ट की बात आ रही है, मतलब कि जो एक वेस्टर्न सिस्टम है और बेसिकली उसमें अमेरिका इज़ द लीडिंग वन एंड ब्रिटिश वगैरह ये जो हैं ये लीड कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये चार चीज़ों पे थियोलॉजिकल, लीगल, फिलोसफिकल और हिस्ट्रिकल, अगर हम इन चीज़ों को देखें तो जो एवोल्यूशन थी वो ओवरऑल वेस्ट के खाते में जाती नज़र आती है। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं एवोल्यूशनरी फेजेस, मतलब कि एवोल्यूशनरी इस तरह ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी थी इसके अंदर ये जो सिस्टम आया इसकी एवोल्यूशन किस तरह हुई। सबसे पहले जी जो अगर इसका फर्स्ट फेज इससे भी पहले देखें, नेपोलियनिक वॉर से पहले, तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को कंसीडर कर लें आप, इट्स द फर्स्ट फेज। वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा बिकॉज वो जो एक ट्रीटी था उसने ओवरऑल जो इंटरनेशनल सिस्टम था उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसको रेवोल्यूशनाइज किया। जिस तरह हमने पहले नेशन स्टेट सिस्टम में पढ़ा है ना कि उसकी वजह से ओवरऑल सॉवरेनिटी का कंसेप्ट आया, किस तरह पॉलिटिक्स जो थी वो चेंज हुई, ओवरऑल किंग्स विल डिसाइड द रिलीजन ऑफ द रीजन, उसके अलावा जो भी गवर्न करेगा वो वही सारा कुछ वो उसका एक कंट्रोल संभालेगा। हॉब्स की वो जो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी वो सामने आई, ओवरऑल जो फिलोसफर्स थे उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। तो उसके बाद जी अमेरिका का रेवोल्यूशन आया, फ्रांस का रेवोल्यूशन आया, उन्होंने ओवरऑल दुनिया को बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम्स दिए जिस तरह डेमोक्रेसी था। तो ये जो सारी चीज़ें थी ना ये पहला फेज था जिसमें आप ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1618 से ऑनवर्ड नेपोलियनिक वॉर्स तक, ये जो 200 साल का ही रहा, आप इसको पहला फर्स्ट फेज कह सकते हैं। दूसरा सेकंड फेज अगर आप इसको कहें तो नेपोलियनिक वॉर्स था, इसके बाद एक नया सिस्टम हुआ, स्टार्ट हुआ। इस नेपोलियनिक वॉर्स जैसे ही एंड हुई थी तो उसके बाद जो एक कंसेप्ट दिया गया था डेमोक्रेसी का और ओवरऑल जो फ्रेंच की वैल्यूज थी उनको, हैगल ने शायद ये कहा था कि दिस इज एंड ऑफ द हिस्ट्री, मतलब कि अब जो होगी अगर जी जब नेपोलियनिक वॉर्स हुई तो नेपोलियनिक वॉर्स के बाद हैगल ने एक थ्योरी पेश की थी, जिस तरह कोल्ड वॉर के एंड के ऊपर फ्रांसिस फ्यूकोयामा ने कहा था कि इट इज़ नॉट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, इट इज़ एन एंड ऑफ द हिस्ट्री। इसी तरह नेपोलियनिक वॉर्स के बाद हैगल ने कहा था इट इज़ नॉट द एंड ऑफ वॉर, इट इज़ एन एंड ऑफ द हिस्ट्री, मतलब कि अब जो दुनिया के अंदर नए रूल्स होंगे जो भी वो आइडियोलॉजिकली और फिलोसफिकली अब उनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रांस ने उस वक्त जो लिबर्टी फ्रेटर्निटी वाला कंसेप्ट था वो दे चुके थे, रेवोल्यूशन आ चुका था। तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत है, इनफ है फॉर द ओवरऑल इंटरनेशनल सोसाइटी। तो वो जो था, और उसके अलावा रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, लीग ऑफ नेशंस, ये जो चीज़ें थी इन्होंने दुनिया को या इंटरनेशनल सिस्टम को थोड़ा सा रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश की। सिमिलरली जो तीसरा बड़ा एक इम्पैक्ट
पड़ता है, या जो एक फेज था वो था ग्रेट डिप्रेशन का। ग्रेट डिप्रेशन ये था जी, यूएस के अंदर 1930 के अंदर एक इतनी बड़ी रिसेशन होती है, इकोनॉमिक रिसेशन, कि उनको एक दिन में तकरीबन $30 बिलियन का नुकसान होता है। अब $30 बिलियन की उस टाइम की अमाउंट अगर आप देखें तो इस टाइम वो ट्रिलियंस में होगी। अगर आप इसकी सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, $6 बिलियन हैं जिनके लिए हम आईएमएफ के साथ अपने डील कर रहे हैं, और वो उससे क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमी होगी वो स्ट्रांग होगी। आप ये अंदाज़ा करें कि 1930 में, एक साल 100 साल पहले, आप इन बिलियन डॉलर्स की जो वैल्यू है, उनकी जो अमाउंट है, उनकी जो वर्थ है, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी होगी। और वो ये एक इस वैल्यू की, ये मतलब कि $30 बिलियन का सिर्फ एक दिन के अंदर यूएस को नुकसान हुआ था। और यूएस उस वक्त एक नई ग्लोबल पावर इमर्ज हो चुका था, बिकॉज उसने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले किया था टू मेड हिज इट प्लेड अ क्रिटिकल रोल टू विन वर्ल्ड वॉर 1 इन द फेवर ऑफ जो उसके वेस्टर्न एलाइज थे, जिनमें यूके था, फ्रांस था, एंड सो। ठीक है, तो उसने ये जो ग्रेट डिप्रेशन था, इसने भी काफ़ी इम्पेक्ट किया ओवरऑल, और एक कंसेप्ट इमर्ज हुआ कि हमने दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं या ओवरऑल इंटरनेशनल सिस्टम एंड एज ए इंटरनेशनल सोसाइटी, हमने ट्रेड के ज़रिए एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहना है, ताकि हम एक दूसरे के साथ रह के हम ट्रेड कर सकें, और इस तरह के जो मसाइल हैं ये दोबारा ना हों। जो चौथा और आखिरी फेज था वो था कोल्ड वॉर का। जब कोल्ड वॉर होती है उस वक्त जो डीकोलोनाइजेशन थी, डीकोलोनाइजेशन ये होती है कि मतलब कि आप की जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जो कॉलोनीज थी, जिस तरह ब्रिटिश की कॉलोनी हम थे, पाकिस्तान और इंडिया, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो डीकोलोनाइजेशन थी वो ऑलमोस्ट जैसे ही कोलैप्स हुआ यूएसएसआर, तो ये भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद ये जॉन बेलिस, जो कि मैंने आपको बताया भी था, इनकी जो बुक है उसमें उन्होंने ये बताया कि ये जैसे ही डीकोलोनाइजेशन कंप्लीट हुई, तो उसने ये जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस था इसको एंड किया। लेकिन स्टिल वो एंड नहीं हो रहा, मतलब कि इसके बाद फर्दर भी जो डेवलपमेंट्स हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस हैं, वो हो रही हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट अगर देखें जी, तो एवोल्यूशनरी जो फैक्टर्स थे वो क्या थे? सबसे पहले ह्यूमन इंटरेक्शन। जैसे ही अर्ली ट्रीटीज हुई, जिस तरह मैंने आपको बताया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट, उसके अलावा जो सीक्रेट अलाइंसेस थे मुख्तलिफ, वो बनते रहे। उसके बाद जी रिलेशंस ऑफ सिटी स्टेट्स, उसके बाद ये चाइनीज़ एंड इंडियन कम्प्लेक्स सोसाइटीज़, इनका भी तकरीबन हज़ारों साल की ये जो पुरानी तारीख है, सिविलाइजेशंस है, इन्होंने भी अपना बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले किया इस इंटरनेशनल सोसाइटी की एवोल्यूशन में। दूसरा जो मेजर रोल था वो थिंकर्स का था, जिनमें हैडले बुल, मार्क एनली एंड जॉर्ज ब्राउन, ये इनके आपने नाम लाजमी याद रखने हैं। ये जो मैंने ओवरऑल पहले आपको 4 पॉइंट बताए थे, लीगल, फिलोसफिकल, और जो दो दूसरे थे, उनकी जो एवोल्यूशन थी वो बेसिकली इन्हीं जो थिंकर्स थे, स्कॉलर्स थे, इन्होंने ही दी थी। और तीसरा जो मेजर फैक्टर था इंटरनेशनल सोसाइटी था वो था इंटरनेशनल लॉ। और ये भी इसको अगर देखा जाए तो वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के साथ ही जोड़ा जाता है, और यूएन का जो चार्टर है उसके साथ, लीग ऑफ नेशन का जो चार्टर है उसके साथ। उसके अलावा जी कैथोलिक चर्च, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इस्लाम मेड हैंडसम कंट्रीब्यूशंस, जिस तरह इस्लामिक लॉज थे, ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट था, वुमेन राइट्स का कंसेप्ट था, ये तो इस्लाम ने आके दिया। पहले तो वेस्ट के अंदर औरत की ना आज कोई वैल्यू है, ना ही इन द हिस्ट्री वो उनको कोई वैल्यू दी जाती थी। उसके अलावा जो सोवरेनिटी का एक बहुत कंसेप्ट आया, यूज ऑफ फोर्स, जिसको यूएन चार्टर के अंदर प्रोहिबिट कर दिया गया। मतलब कि प्रोहिबिट मतलब यूज ऑफ फोर्स का मतलब है, मतलब कि आप किसी के ऊपर अब वार इन्वेट नहीं कर सकते, आप किसी कंट्री के अंदर इन्वेजन नहीं कर सकते, जिस तरह यूक्रेन ने किया, यूक्रेन में रशिया ने किया, तो ये एक वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। सिमिलरली डिप्लोमेसी पहले सीक्रेट हुआ करती थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर भी चेंजिंग्स आई। अब ये ओपन डिप्लोमेसी है, हर काम जो भी किया जाता है उसको पब्लिश किया जाता है, दुनिया के सामने अनाउंस किया जाता है। यही रीज़न है कि आप देखते हैं जब भी कोई एक मुल्क के अंदर कोई एम्बेसडर होता है, या कोई भी कंट्री का नुमाइंदा किसी दूसरे कंट्री में जाता है, तो वहाँ जाके वो
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जब वो मिलने के बाद, वो चीज़ों को सीक्रेट नहीं रखते, वो बताते हैं दुनिया को, वी हैव डिस्कस दिस 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 दिस। और फिर उसके बाद वो एमओयूज अगर कोई साइन होते हैं तो उनके ऊपर वो प्रॉपर प्रेस के सामने वो ब्रीफिंग दी जाती है कि हमने ये एमओयू साइन किए हैं। ये सारा क्या है, पहले इस तरह हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ करता था। हिस्ट्री में ये सीक्रेट अलायंसेस हुआ करते थे, मतलब कि जो डिप्लोमेटिकली इस तरह दुनिया को ना बताया नहीं जाता था कि हमने ये इस तरह अलायंस बनाया है। नेक्स्ट जी, बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट, ये भी हम इंशाल्लाह ताला अपनी जो आगे वाले आने वाली वीडियोस हैं उनके अंदर इसको हम देखेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। इसको हम इंशाल्लाह ताला अपनी ना अगली वीडियो में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।